Hello students. We'll continue with the factors which affect the equilibrium constant. I've already discussed some factors like how do we represent a chemical equation? What are the stoichiometric coefficients? If what happens if we reverse a particular reaction? If we reverse it, if we reverse the chemical equation, तो इन सारी बातों का इन सारे फैक्टर्स का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पर इफेक्ट पड़ता है. If we balance the chemical equation in different ways, we'll get different values for equilibrium constant, although the significance will remain the same. Continuing with the factors which affect equilibrium, the next factor is very important, temperature. The next factor that affects equilibrium constant is temperature. आर्नेस ने एक इक्वेशन प्रपोज करी थी which relates temperature and the rate constants. That RNS equation is K is equal to A e raised to power minus EA upon RT. This is known as RNS equation. In this equation, K is rate constant, जो मैं आपको जिसका आइडिया आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि whenever हम जब भी रेट की बात करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन की, रेट is directly proportional to the concentration of reactants. I hope you remember I had discussed the law of mass action while I was discussing the application of law of mass action, that is law of chemical equilibrium. तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि law of mass action ये कहता है कि किसी भी reaction की जो rate है that is directly proportional to the concentration, the product of concentration of the reactants, and when we remove the proportionality sign and we introduce a constant, that is known as a rate constant denoted by K. तो यहाँ पर K वही rate constant है. ये जो A है, this is frequency factor or you can say an RNS parameter. It is RNS parameter जो nature of reaction पर depend करता है. E is the exponential. This EA which is in power is the activation energy. Now what is activation energy? Basically हमें ये मालूम है कि सारे रिएक्शंस रूम टेम्परेचर पर नहीं होते. उन्हें कोई ना कोई फेवरेबल टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, कोई फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड होती है. ओनली व्हेन दैट कंडीशन इज प्रोवाइडेड the reaction proceeds and the products are formed. Now why is it so that the reactions do not occur at room temperature? Why is it so that they require certain factors, certain conditions to proceed? This is so because there are basically two barriers which actually control the conversion of reactants into products. दो बैरियर्स होते हैं, अगर वो दोनों बैरियर क्रॉस हो जाए तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, अदरवाइज नहीं. One barrier among those two is the energy barrier, right? Now the basic idea behind a chemical reaction is collision between reactant molecules. कैसा भी reaction हो वहां पर reactant molecules के बीच में collision होना चाहिए, तभी bond का breaking formation होती है, redistribution of electrons occur and the product is formed, right? So for this collision molecules require certain amount of energy. That is known as energy barrier. कि हो सकता है उनके पास उतनी एनर्जी ही नहीं हो कि वो इफेक्टिवली कोलाइड करें. अगर उतनी एनर्जी है तो वो इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे, अगर नहीं है तो उनके कोलिजन्स इनइफेक्टिव माने जाएंगे. तो वन ऑफ द बैरियर, द सेकंड बैरियर इज ओरिएंटेशन बैरियर दैट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हियर. द फर्स्ट बैरियर इज एनर्जी बैरियर. अब कोई ना कोई मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है फॉर द रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट. That minimum amount of energy which is required for the conversion of reactant into product is known as threshold energy. The minimum amount of energy that is required for the reaction to occur. कि कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए तभी रिएक्शन प्रोसीड होगा, तभी रिएक्टेंट क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में. तो उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी. बट हो सकता है मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी हो, इतनी एनर्जी ना हो. दिस डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस एंड द नेचर, राइट? तो मॉलिक्यूल्स के पास कुछ एनर्जी है, लेट्स से हम उसको डिनोट कर देते हैं एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के नाम से, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, राइट? तो ये एनर्जी जो है ये मॉलिक्यूल की कम है एज कंपेयर टू थ्रेशोल्ड. उसको मिनिमम थ्रेशोल्ड चाहिए, उसके पास उससे कम है, तो डेफिनेटली हमें कोई ना कोई कंडीशन प्रोवाइड करनी होगी, मे बी थ्रू हीट, मे बी बाय इंसिडेंटिंग लाइट और बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, व्हाटसोएवर. वो कोई भी कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से उस मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है रिएक्टेंट की एनर्जी या तो थ्रेशोल्ड के बराबर हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए, तभी वो रिएक्शन प्रोसीड होगा. तो जो डिफरेंस होगा
कितनी हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी है एक्सटर्नल सोर्स से, ये जो डिफरेंस होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, यही एनर्जी हमको प्रोवाइड करनी पड़ेगी एंड दिस विल बी नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी, energy of activation, or you can say activation energy, right? So activation energy is what? It is the minimum amount of extra energy that has to be provided to the reactant molecules so that they effectively collide and proceed to the formation of product. तो ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है, उसको हमने डिनोट किया है EA से. R here is the gas constant, universal gas constant. ये जो R है फॉर्मूले इक्वेशन में, that is the universal gas constant, right? T is the temperature in Kelvin. So this is RNS equation where there is a relationship between rate constant and temperature. ठीक है. अब सपोज हम एक रिएक्शन को दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे करवा रहे हैं, T1 एंड T2, तो ऑब्वियसली रेट कांस्टेंट जो होगा वो डिफरेंट होगा. T1 पर लेट्स से वो K1 है और T2 पर वो K2 है. तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं और इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, K1 is equal to A E raised to power minus E A upon R T1. RNS इक्वेशन ही लिखी जा सकती है. इसको सॉल्व करने के लिए लॉग ले सकते हैं दोनों साइड पर, तो लॉग K1 is equal to log A minus EA upon R T1. Changing the base of log to log 10. अभी log to the base E है, right? Changing it to log to the base 10. K1 is equal to log to the base 10A minus EA upon 2.303 RT1. So this gives us a relationship between rate constant and temperature. ऐसी ही इक्वेशन हम T2 और K2 के लिए लिख सकते हैं. और जब हम कंपेयर करेंगे तो देन वी कैन राइट, हम दोनों इक्वेशन से एक नेट इक्वेशन निकाल सकते हैं, दैट इज log to the base 10 K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2. ये नेट इक्वेशन हम निकाल सकते हैं. when we compare, we subtract both the equations, right? K1 को हम K2 की इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो we'll get this net equation. Now जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इट इज इन रिवर्सिबल रिएक्शन, वहां पर दो रिएक्शंस हो रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन. यहाँ तो आई हैव जस्ट चेंज टेम्परेचर एंड बेस्ड ऑन द चेंजेस इन टेम्परेचर वी हैव चेंज्ड रेट कांस्टेंट. तो मैंने T1 K1 लिखा, T2 K2 लिखा, मैंने EA को सेम लिया है. व्हाई? बिकॉज दिस एक्टिवेशन एनर्जी, ये हम सेम रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने एक एक्टिवेशन एनर्जी लिख ली, दैट इज कॉमन E है. बट अगर हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ रिवर्सिबल रिएक्शन विच इज कंप्राइज्ड ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स हैं वो अलग हैं, जिनका नेचर बैकवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट से अलग है, तो डेफिनेटली उनकी एक्टिवेशन एनर्जीज भी अलग अलग होंगी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, राइट? इन दिस केस वी विल चेंज द एक्टिवेशन एनर्जीज एज वेल. तो हम ये जो इक्वेशन है इसको हम लिख सकते हैं फॉर forward reaction as well as for backward reaction. So let's write first for forward reaction. अगर मैं forward reaction की बात कर रही हूं तो I can write log to the base 10. अब मुझे K2 ऊपर लिखना है, K1 नीचे लिखना है, and this is for forward. मैं इन तीनों चीजों को मिला देती हूँ, ठीक है? तो I can write KF2 upon KF1. दिस इज फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन. इसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी, लेट्स से इट इज E सबस्क्रिप्ट F अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2. तो जब मैंने टेम्परेचर T1 रखा है तो रेट कांस्टेंट KF1 है, जब मैंने T2 रखा है तो रेट कांस्टेंट KF2 है. लेट्स से दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, right? Similarly, I can write an equation for the backward reaction also. तो मैं backward reaction की equation लिख लेती हूँ. For backward reaction, I can write log to the base 10 KB2 upon KB1 is equal to, let's say the activation energy is EB, E subscript B upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2.
तो जिन दो टेम्परेचर्स पे मैं फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट कंसिडर कर रही हूँ, उन्हीं दो टेम्परेचर्स पे मैं बैकवर्ड रिएक्शन के भी रेट कांस्टेंट्स कंसिडर कर रही हूँ. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. हम बैकवर्ड रिएक्शन की जो इक्वेशन है, वी आर सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वेशन, राइट? सो व्हाट वी कैन गेट, log to the base 10, right? kf2 upon kb2 kf1 upon kb1. ये तो आ गया LHS में. RHS में आ जाएगा EF माइनस EB. बैकवर्ड को मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ फॉरवर्ड में से, अपॉन 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2. Yes. Now, what is this kf2 upon kb2? This numerator kf2 upon kb2, what is it? This is the equilibrium constant. Remember, equilibrium constant क्या होता है? Rate constant का ratio, rate constant for the forward reaction upon rate constant for the backward reaction. That gives us the equilibrium constant for that reversible reaction, right? तो ये जो kf2 upon kb2 है, इसको हम लिख सकते हैं equilibrium constant at temperature T2. Right? ऐसे ही kf1 upon kb1 can be written as the equilibrium constant at temperature T1. So this equation can be reduced as log to the base 10 k2 upon k1. K2 is the equilibrium constant at T2 and k1 is the equilibrium constant at k1. And this difference EF minus EB, ये क्या है? दोनों रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी में हमने डिफरेंस निकाला है. तो व्हाट इज इट? दैट इज द नेट एनर्जी चेंज अकरिंग इन द रिएक्शन. भाई दोनों रिएक्शंस को होने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए. अब उसी के बेसिस पर तो नेट एनर्जी चेंज होगा. एवरी केमिकल रिएक्शन इज अकम्पनीड विद एनर्जी चेंज. मे बी एक्सोथर्मिकली, मे बी एंडोथर्मिकली इट इज प्रोसीडिंग. दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्शन. तो ये जो EF माइनस EB है, दिस इज एक्चुअली व्हाट? दिस इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दैट कैन बी डिनोटेड बाय डेल्टा H. So EF upon EB, EF minus EB can be written as delta H. That denotes the energy change, the enthalpy of reaction, right? So H को हम denote करते हैं क्या? Enthalpy of reaction upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2. This is the net equation, which is very, very important. This equation gives us the relationship between temperature and equilibrium constant. कि कैसे जब आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है, ये इस इक्वेशन से पता चलता है. नाउ अगेन वी कैन डिस्कस 3 केसेस डिपेंडिंग अपॉन डेल्टा H. जैसे मैंने कहा कुछ रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं, कुछ रिएक्शंस एंडोथर्मिक होते हैं, तो दोनों के लिए जो एनर्जी चेंज होगा वो क्या होगा? डिफरेंट, राइट? 3 केसेस बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ डेल्टा H. हम 3 केसेस डिस्कस कर सकते हैं बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ डेल्टा H. फर्स्ट केस कैन बी इफ डेल्टा H इज 0, राइट? व्हेन डेल्टा H इज 0, व्हाट विल हैपन? अगर हम डेल्टा H को 0 मान लें तो व्हाट विल हैपन? log K2 माइनस log K1, मतलब ये जो LHS है ये तो एज इट इज रहेगा, RHS पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, राइट? और log में जब हम डिविजन में लिखते हैं तो दैट्स हम उसको एक्सपैंड करके सब्ट्रैक्शन में लिख सकते हैं. तो log K2 log टू द बेस 10, ठीक है, K2 minus log to the base 10 K1 will become 0. Or we can write log to the base 10 K2 is equal to log to the base 10 K1 or K2 is equal to K1. Right? So when delta H is 0, इसका मतलब टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में चेंज नहीं आएगा. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट will remain same at all temperatures. But ये practically नहीं होता. Right? तो second case can be when delta H, the value of delta H is the second case 2, delta H is positive. When delta H is positive, we consider the reaction to be endothermic. तो अगर आप कहीं भी पढ़ो कि for a particular reaction delta H is positive, इसका मतलब the reaction will proceed by the absorption of energy, right? So delta H is positive, this means reaction is endothermic, and we'll consider कि T2 जो temperature है that is higher than T1. राइट? तो 1 upon T1 minus 1 upon T2, ये जो RHS में है, दिस विल कम आउट टू बी पॉजिटिव. इसको हम क्या लिख सकते हैं? T2 minus T1 upon T1 T2, and we are saying T2 is greater than T1, so this entire value will come out to be positive. इसका मतलब log K2 log to the base 10 K2 upon K1, ये जो आ रहा होगा, ये क्या आ रहा होगा? पॉजिटिव.
आपने डेल्टा एच को भी पॉजिटिव मान लिया, आपने T2 को ग्रेटर मान लिया T1 से, तो ये जो लॉग जो रेशियो आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स का डिफरेंट टेम्परेचर्स, दिस विल कम आउट टू बी पॉजिटिव. When it is positive, we can say the value of log K2 is greater than log K1, right? Or we can say K2 is greater than K1. That means the value of equilibrium constant is higher at higher temperatures for an endothermic reaction. So for an endothermic reaction, जब एनर्जी कंज्यूम करके एनर्जी एब्जॉर्ब करके रिएक्शन हो रहा है, तब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी, राइट. आई होप द थर्ड केस इज वेरी क्लियर. व्हेन डेल्टा एच इज नेगेटिव, तो थर्ड केस हम ले सकते हैं केस 3. व्हेन डेल्टा एच इज negative, such reactions will be considered as exothermic reactions. Reactions which proceed by the release of energy, production of energy. तो इस केस में एक्सोथर्मिक है, हमें मान सकते हैं कि T2, अगेन वील टेक द सेम assumption, T2 is greater than T1. इस केस में if T2 is greater than T1 but delta H is negative, log to the base 10 K2 upon K1 will come out to be negative. This means log to the base 10 K2 is less than log to the base 10 K1, or we can say K2 is less than K1. That means the value of equilibrium constant is lower at higher temperatures for an exothermic reaction. किसी भी exothermic reaction के लिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो तो equilibrium constant की वैल्यू कम होती जाएगी, राइट. यही रेट कांस्टेंट के टर्म्स में भी आता है. जब हम रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का रिलेशन पढ़ते हैं तो भी यही चीज आती है, और इसलिए हम बोलते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को बहुत हाई टेम्परेचर्स पर हम नहीं करवा सकते, क्योंकि वो उनके लिए एक अनफेवरेबल कंडीशन हो जाती है. काइनेटिकली उनको बहुत लो टेम्परेचर पर भी नहीं करवा सकते, इसलिए उनको मॉडरेट टेम्परेचर पे करवाया जाता है, राइट. सो दीज वर द फैक्टर्स व्हिच वर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ये सारे वो फैक्टर्स थे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करते हैं. Let's take another topic in the chapter. We'll continue with the chapter and we'll discuss about reaction quotient. Reaction quotient, or it's also called mass action ratio. Reaction quotient or mass action ratio. Let's consider a reversible reaction A plus B giving C plus D. Right? इसके लिए जैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, वैसे ही हम इसके लिए एट अ गिवन टाइम हम Q लिख सकते हैं, दैट इज C D, कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A विद कंसंट्रेशन ऑफ B. Q कैन बी डिनोटेड, जैसे K को डिनोट करते हैं KP या KC, वैसे ही Q को डिनोट कर सकते हैं एज QP और QC, depending upon whether the concentration is taken in terms of molarity, in terms of moles per liter, or it is taken in the form of partial pressure. Now, help of mass action ratio, इसका significance क्या है? अगर हम ये निकाल भी लेते तो हमें क्या पता चल जाएगा इससे? With the help of mass action ratio, we can determine whether the given reaction is at equilibrium or not. राइट और अगर नहीं है वो इक्विलिब्रियम पर, तो उसे इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से किस तरफ प्रोसीड करना पड़ेगा. दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिएक्शन क्वोशिएंट. ये जो क्यू हमने निकाला है ये तो हम कभी भी निकाल सकते हैं ना. रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसके वो स्टार्ट हुआ है, उसके इनिशिएट होने के कुछ मिनट बाद, कुछ सेकेंड बाद, बहुत लंबे टाइम बाद कभी भी निकाल सकते हैं हम. इट इज मेयरली द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. ये तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो, दैट्स इट. वो कभी भी निकाला जा सकता है, पर हम इससे ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि वेदर द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम और नॉट. लाइक इफ यू से हमने कैलकुलेट किया Q और हमें पता चला कि QC इज इक्वल टू KC, राइट. वी कैन से द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. बट इफ QC is less than KC, तीन केसेस बन सकते हैं. QC is less than KC मतलब the reaction is not at equilibrium, right. QC less than KC है, इक्विलिब्रियम नहीं अटेन हुआ है. अगर इक्विलिब्रियम अटेन करना है तो क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब क्या होगा, QC will become equal to KC. QC को इंक्रीज करना पड़ेगा, then only it will become equal to KC. QC इंक्रीज कैसे होगा? आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन
इंक्रीज कर दो, यानी रिएक्शन शुड प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इन ऑर्डर टू अटेन इक्विलिब्रियम, राइट। ऐसे ही थर्ड केस हो सकता है वेयर QC is greater than KC. Again, the reaction will not be at equilibrium. To attain equilibrium, it will have to reduce, it will have to decrease the value of QC so that it becomes equal to KC. And for that, reactant को बढ़ाना पड़ेगा या आप बोलो प्रोडक्ट को कम करना पड़ेगा, तो उसके लिए बैकवर्ड रिएक्शन में बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को प्रोसीड करना चाहिए, राइट। तो जब हमने डायरेक्शन की बात करी है कि रिएक्शन किसी ना किसी डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा सो दैट इट विल अटेन इक्विलिब्रियम, तो इसी से ही इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है which should be understood very well, which should be studied very well, and that is Le-Chatelier principle. Le-Chatelier principle. This topic is very very important. हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ली-शैटलियर प्रिंसिपल, जैसे आपने फिजिक्स में इनर्शिया पढ़ते हो, इनर्शिया क्या है? अब जो स्टेट है बॉडी की उसको रेजिस्ट करने की टेंडेंसी। अगर बॉडी मोशन में है तो इट विल ट्राई टू रिमेन इन मोशन, और अगर कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है वो उसको अपोज करेगी। अगर वो रेस्ट में है बॉडी तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी। अगेन इफ एनी फोर्स इज अप्लाइड द बॉडी विल रेजिस्ट द फोर्स, अपोज द फोर्स। यस, वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन, एवरी रिवर्सिबल रिएक्शन अटेन्स इक्विलिब्रियम सम ऑफ द अदर टाइम, sooner or later it will come to equilibrium। तो अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और आप उसमें कोई चेंज करने की कोशिश करते हो तो वो सिस्टम उस चेंज को अपोज करेगा एंड इट विल ट्राई टू मेंटेन इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट। यस, तो अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, आप उसमें कोई भी चेंज करते हो, चेंज करने का मतलब है आपने टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया, प्रेशर, कंसंट्रेशन, कुछ भी, आप कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हो सिस्टम में। ज्यादा प्रोडक्ट डाल दिया, ज्यादा रिएक्टेंट डाल दिया, प्रेशराइज कर दिया, प्रेशर कम कर दिया, व्हाटएवर, इट कैन बी एनी सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस। यस, तो अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और आप उसको डेलिबरेटली डिस्टर्ब करते हो तो इट विल अपोज दैट पर्टिकुलर डिस्टर्बेंस, और वो ट्राई करेगा कि वो फिर से डिस्टर्ब तो होगा बट इट विल ट्राई टू रिटेन द इक्विलिब्रियम स्टेट। वो कोशिश करेगा वो फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाए। अब उस इक्विलिब्रियम में आने के लिए आइदर इट विल मूव in the forward direction or it will move in the backward direction, और वही prediction Le-Chatelier principle से हम करते हैं, right? So if a system is in equilibrium subjected to a change in any factor like concentration, pressure, temperature or whatsoever, the equilibrium shifts in the direction that tends to undo the effect of the change so that the system regains the equilibrium state। तो जो भी हम डिस्टर्बेंस करेंगे वो उसको अंडू करने की कोशिश करेगा, उसको अपोज करेगा और किसी न किसी डायरेक्शन में मूव करेगा। दैट इज प्रेडिक्टेड, द डायरेक्शन इज प्रेडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ली-शैटलियर प्रिंसिपल। यस, तो हम ऐसे फैक्टर्स पढ़ते हैं। फर्स्ट फैक्टर इज चेंज इन concentration. One of the disturbances can be in terms of changing the concentration, right? अब concentration किसी की भी change की जा सकती है, whether reactant or product. So if the concentration of reactants is increased, आपने one or more reactant की concentration increase कर दी, तो क्या करेगा सिस्टम? इसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। डिक्रीज रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कहाँ होती है? जब रिएक्टेंट ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, यानी इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन सो दैट रिएक्टेंट की कम हो जाए, प्रोडक्ट की इंक्रीज हो जाए और फिर से इक्विलिब्रियम आ जाए। सिमिलरली अगर आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम कर दी तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, बढ़ाएगा तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। द सेम चेंज कैन बी डन विद द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो, कि अगर आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करी है तो सिस्टम ट्राई करेगा इसको डिक्रीज करने के लिए। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कहाँ होगी? जब वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा, यानी इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। इफ यू हैव डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जैसे ही प्रोडक्ट बन रहा है आप उसको बाहर निकाल रहे हो, किसी भी तरीके से आप उसको डिक्रीज कर सकते हो, तो सिस्टम विल ट्राई टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन एंड इट विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन।